عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے. اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے. جو توبہ گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے. ملت کے جوان فلمی گانے سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں. قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے. خاتون مسلمان اب گھر
سے بے پردہ چلی بازاروں میں، خاتون مسلمان اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں، برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرے کو چھپانا مشکل ہے، ٹی وی کے تماشے بھی تم ہو، شیطان کے بھائی بھی تم ہو، ٹی وی کے تماشے بھی تم ہو، شیطان کے بھائی بھی تم ہو، کچھ وقت نمازوں میں اپنا اب لگنا لگانا مشکل ہے، اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور آج کے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے بڑے بھائی، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، سب سے پہلے میں تو اس اجلاس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آؤں اور قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جن نوجوانوں نے ایک ایسے دور میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا اور اس اللہ کی توحید کی گواہی دی، ان کی وحدانیت کی گواہی دی، ربوبیت کی گواہی دی، اور وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کر کے یہ بے بانگِ دوحل اعلان کیا کہ اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اگر آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر تائرانہ نظر دوڑائیں اور مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں تو آج سماج اور معاشرے کے اندر کئی طرح کی ایسی برائیاں اور خامیاں موجود ہیں جن میں اصلاح کی سخت ضرورت ہے، اور اصلاح نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان آئے دن تکلیفوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں اور خاص کر کے ملک عزیز یعنی سرزمین ہندوستان کا آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی پریشانی اور تکالیف میں یہ مسلمان مبتلا رہتا ہے۔ جب ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے،
میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا والے انسان اگر امن چاہتا ہے، اگر سلامتی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھے، اور اس کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی اور غلطی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جو گھرانہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، جو گھرانہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، وہ گھرانہ بھی آج کے اس دور میں شرک کی غلاظت میں اور شرک کے عمیق گڑھے میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر امن چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر پریشانیاں نہ آئے، اگر تم اس دنیا کے اندر سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منصوبہ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اور ایمان کو لے آنے کے بعد، ایمان کے اوپر آ جانے کے بعد، ایمان کو لے آنے کے بعد اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے واضح کرتے ہیں، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ظلم سے شرک کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو لے آنے کے بعد، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دینے کے بعد، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، یہی وہ انسان ہے جس کو دنیا کے اندر امن ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اے دنیا والے لوگوں، یہی وہ انسان ہے جسے دنیا کے اندر امن ملنے والا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ آج اگر ہمیں سکون ملے تو کہاں سے ملے، آج اگر ہمیں راحت ملی تو کہاں سے ملے؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں۔ کبھی حکومت ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی ہندوستان کا حکومت ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ کو توڑتا ہے، ایسے ایسے قانون بنا کر کے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ایک آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو اللہ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر حکومت چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر سلطنت چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر بادشاہت چاہتے ہو، تو تمہاری
रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ला करके अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर हुकूमत चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर सल्तनत चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर बादशाहत चाहते हो, तो तुम मोमिन बन करके अपनी जिंदगी को गुजारो, ईमान की हालत में अपनी जिंदगी को गुजारो, एक मोमिन बन करके मुवहिद बन करके अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर तुम इस दुनिया के अंदर सल्तनत चाहते हो, मेरे अजीज साथियों, इन आयत करीमा को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही नाज़िल न किया, बल्कि सहाबाए किराम ने जब इन आयत करीमा के ऊपर अमल करके दिखाया, जब सहाबाए किराम ने इन आयत करीमा को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज किया, तो हमने उस तारीख को भी पढ़ा है कि कैसर और किसरा भी सहाबाए किराम की कदमों के नीचे आ चुका था। हम और आप समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो यूं ही इस आयत करीमा के अंदर एक मुसलमान को दिलासा दे रहा है, यूं ही तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है ओ मुसलमानों, यूं ही अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर नहीं कह रहा, बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाज़िल कर दिया, सहाबाए किराम मायूस हो चुके थे, जंग उहद का मौका था, सहाबाए किराम मायूस हो चुके थे, सहाबाए किराम जो मायूस हो चुके थे, ऐसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को नाज़िल करता है और सहाबाए किराम को दिलासा दिलाता है, सहाबाए किराम को मोटिवेट करता है कि ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर हुकूमत चाहते हो, तुम इस दुनिया के अंदर गमज़दा ना हो, तुम इस दुनिया के अंदर गमगीन ना हो, अगर तुम हुकूमत चाहते हो तो सल्तनत भी तुम्हारी ही हाथों में होगी, लेकिन शर्त ये है कि ईमान वाले इंसान बन करके अपनी जिंदगी को गुजारो। शर्त ये है कि ईमान ला करके अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे अजीज साथियों, आप तारीख का मुताला तो करें, आप हदीस के औरात को तो पढ़ते, आपको पता चलेगा कि जब सहाबाए किराम ने इन आयतों के ऊपर अमल किया और इन आयतों को अमली जामा पहनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सल्तनत भी दी, हुकूमत भी दी और इस दुनिया के अंदर बादशाह भी बनाया। और कैसर और किसरा जो वक्त का सबसे बड़ा सुपर पावर हुआ करता था, ऐसे सुपर पावर को सहाबाए किराम के कदमों के नीचे ला करके खड़ा कर दिया था। मेरे अजीज साथियों, अपने ईमान का जायजा ले ले, अपने गरिबान के अंदर टटोल करके देख ले कि कहीं हमारी ईमान के अंदर कमजोरी तो नहीं है, हमारे ईमान के अंदर कहीं कमी तो नहीं है, जिसका नतीजा और जिसका समरा हमें मिल रहा है कि आए दिन जो भी चाहता है मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर अपनी जबान को खोलता है और जो चाहता है बोल करके निकल जाता है, जैसा चाहता है परेशान करके निकल जाता है, जैसा चाहता है तकलीफों में मुब्तला करके निकल जाता है। मेरे अजीज साथियों, कहीं हमारे ईमान के अंदर कमी तो नहीं, इसीलिए मैंने एक ऐसे आयत करीमा को चुना है और एक ऐसे आयत करीमा को मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों को झिझोड़ने की कोशिश की है, नौजवानों को खबरदार किया है कि नौजवानों, समाज का बागडोर और समाज की जो जोड़ है वो तुम्हारे ही हाथों में है। अगर समाज को सही रास्ते के ऊपर गामज़न करना चाहते हो, समाज को शिर्क के दलदल से निकालना चाहते हो, समाज को बुराइयों के अमीक गड्ढे से अगर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें मैदान के अंदर आना होगा, तुम्हें मैदान के ऊपर आकर के और अपने कौम को सुधारने के लिए काम करना होगा। बगैर काम किए समाज और मुआशरे के अंदर इज्जत नहीं मिल सकती, मुल्क के अंदर इज्जत नहीं मिल सकती, जब तक हम और आप अपने दरमियान में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे। और ये वो आयत करीमा है जिस आयत करीमा के तफसीर में तफसीर कुर्तुबी बयान करते हैं कि ये वही आयत करीमा है जिस आयत करीमा के अंदर जिन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया था, उन लोगों ने अपने दरमियान में सबसे पहले इत्तेहाद को बहाल किया था, उन नौजवानों ने सबसे पहले अपने दरमियान में भाईचारे को कायम किया था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी और उसका नतीजा ये हुआ, उसका समरा ये मिला कि जब उन लोगों ने इत्तेहाद को बहाल किया, जब उन लोगों ने भाईचारे को मजबूत किया, और नतीजा ये हुआ कि जब बादशाह के सामने खड़े हुए तो बैक ज़बान उन तमाम के तमाम नौजवानों ने एक ज़बान होकर के बादशाह के सामने कहा। उस दकियानूस बादशाह के सामने ये ऐलान किया कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी की परस्तिश होगी तो उस
रब कायनात की होगी। इस दुनिया के अंदर अगर इबादत किसी की होगी तो उस रब कायनात की इबादत होगी। मेरे अजीज साथियों, तफसीर कुर्तुबी बयान करते हैं कि ये भाईचारगी का नतीजा है कि इन लोगों ने इत्तेहाद को बहाल किया। यही वजह है कि ये लोग एक जबान होकर के बादशाह के सामने खड़े होकर के ये ऐलान किया कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी, हम गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी बातें आगे आएगी। सबसे पहले नौजवानों की जो जिम्मेदारी है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज साथियों, आज इस दुनिया के अंदर और जो तारीख गुजर चुकी है उन तारीख का भी आप मुताला कर ले और इस दुनिया का भी मुशाहिदा कर ले। आपको पता चलेगा कि अगर किसी भी कौम ने, अगर किसी भी जमात ने अगर कामयाबी हासिल की है, किसी भी महाज पर किसी भी जमात ने किसी भी मिशन में अगर कामयाबी हासिल की है तो उस मिशन में नौजवान सर फहरिस्त मौजूद मिलेंगे। नौजवान सर फहरिस्त आपको मिलेंगे। नौजवानों ने सबसे पहले अपने कमर को कसा और नौजवानों ने अधेड़ उम्र वाले इंसानों को जगाया, बूढ़ों को जगाया और उस महाज पर कामयाबी हासिल की। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जवानी की अहमियत को एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है। आइए सबसे पहले उसी आयत करीमा का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है, दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, जब मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने तुम्हें जब इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो कमजोरी की हालत में पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। ऐ दुनिया वाले लोगों, वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो कमजोरी की हालत में पैदा किया। जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, जब एक आदमी इस दुनिया के अंदर जन्म ले लेता है, जब अपने माँ के रहम से बाहर आ जाता है, एक इंसान कमजोरी की हालत में रहता है, एक इंसान नातबा रहता है, एक इंसान लागर रहता है, अपने हाथों से कुछ खा भी नहीं सकता जब तक माँ उसे अपने पिस्तानों से लगा करके दूध ना पिलाए। एक बच्चा खुद से दूध भी नहीं पी सकता। अल्लाह तबारक व तआला इसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। ऐ दुनिया वाले लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो कमजोरी की हालत में पैदा किया। कमजोरी की हालत में तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद दूसरे टुकड़े के अंदर जवानी के बारे में इशारा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। ऐ दुनिया वाले लोगों, हमने तो तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया था, लेकिन एक मुद्दत के बाद, एक अरसा गुजर जाने के बाद हमने तुम्हें जवानी की दहलीज पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। हमने तुम्हें कमजोरी से ले जा करके जवानी की दहलीज पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। और ये जवानी का दौर तवानाई का दौर होता है। ये जवानी का दौर जो है वो ताकतवरी का दौर है। ये जवानी का दौर जो है वो तवानाई का दौर है। जब एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रख देता है, एक इंसान ताकतवर हो जाता है, एक आदमी तवाना हो जाता है। अपने बलबूते पर वो इंसान जो चाहता है इस दुनिया के अंदर कर लेता है। अपने ही बलबूते पर एक इंसान अगर दौलत को कमाना चाहता है तो वह आदमी दौलत को भी कमा लेता है। अगर एक आदमी इस दुनिया के अंदर जिस महाज पर भी अपने कदम को बढ़ाता है बड़ी आसानी से कामयाबी को हासिल कर लेता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जवानी के दौर की तरफ जब इशारा कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला जवानी के दौर को कुव्वत से ताबीर कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, पहले तो तुम
कमजोर थे, लेकिन कमजोरी के बाद जब हमने तुम्हें जवानी के मरहले के ऊपर ले जा करके खड़ा कर दिया, तो ये दौर तुम्हारे लिए तवानाई का दौर है, ये दौर तुम्हारे लिए ताकतवरी का दौर है। अब इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे की दौर की तरफ इशारा कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है कि ऐ लोगों, अब तो जवानी के बाद जब हम तुम्हें बुढ़ापे की दौर पर ले जा करके खड़ा करेंगे, तो ये दौर भी कमजोरी का दौर है, ये दौर भी कमजोरी का दौर है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। ऐ दुनिया वाले लोगों, जवानी के बाद जब हम तुम्हें बुढ़ापे की दौर के ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ये दौर और ये मरहला भी जो है वो कमजोरी का मरहला है। ओ लोगों, इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, इस आयत करीमा के अंदर तदब्बुर तफक्कुर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मरहले की तरफ इशारा किया, 3 दौर की तरफ इशारा किया, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों दौर में जब जवानी का तज़किरा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी के दौर को ताकतवरी का दौर का। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जवानी की अहमियत को वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जवानी की अहमियत के बारे में इशारा कर रहा है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर भी जवानी की कदर करने की ताकीद कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वाले लोगों से कह रहे हैं कि ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ इंसानों, तुम 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। और मेरे मौजू के ताल्लुक से 2 चीजें हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हयातक क़ब्ल मौतिक। ऐ दुनिया वाले लोगों, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने दिनों तक तुम्हें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा है, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि मौत आ जाए। मौत के आ जाने से पहले पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। अब इस टुकड़े के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के मरहले की तरफ इशारा कर रहा है, शबाबका क़ब्ल हरमिक। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के बारे में बयान करने के बाद अब जवानी के बारे में अलग से इशारा कर रहा है कि ऐ नौजवानों, तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी के ऊपर खैर मनाओ। ऐ नौजवानों, तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म जो है कमजोर हो जाए। जिस्म के कमजोर हो जाने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझ लो। मेरे अजीज साथियों, अगर इस हदीस के ऊपर भी आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से जवानी के बारे में इशारा कर रहे हैं और दुनिया वाले लोगों से जवानी की अहमियत की कदर के बारे में इशारा कर रहे हैं। वरना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिंदगी के बारे में कह दिया था, तो जिंदगी के अंदर जवानी का मरहला भी आता है, जिंदगी के अंदर जवानी का मरहला भी आता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से जवानी की कदर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जवानी का एक अलग मकाम और मर्तबा है। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जवानी का एक अहम रोल है। तुम्हारी जिंदगी के अंदर जवानी का एक अहम मकाम और मर्तबा है, इसलिए तुम अपनी जवानी को गनीमत समझो, अपनी जवानी के ऊपर खैर मनाओ, यहाँ तक कि जवानी ढल जाए और बुढ़ापा आ जाए। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, आयत करीमा के अंदर अल्लाह जवानी की अहमियत को वाज़ेह कर रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर जवानी की अहमियत को और उसकी कदर की ताकीद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाए कि अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जवानी की क्या अहमियत है। मेरे अजीज साथियों, आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर शिर्क का बाजार गर्म है। आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर भाई भाई में तफरकाबाजी है। आज समाज और मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम है। आज समाज और मुआशरे के अंदर दिगर बुराइयां आम है। मेरे अजीज साथियों, इर्तिदाद का फितना जोरों शोर के ऊपर है। मेरे अजीज
साथियों आखिर इन बुराइयों का इलाज कौन करेगा? आखिर इन बुराइयों को अगर उनकी जड़ों को काटेगा तो कौन काटेगा? मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नौजवानों की अहमियत को वाज़ेह किया तो यही वजह है, जब हम कुरान का मुताला करते हैं, जब हम कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं और तारीख के किताबों का मुताला करते हैं, तो मेरे अजीज साथियों हमें पता चलता है कि कुरानी नौजवानों ने जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को समझा, जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को समझा और जब इन लोगों ने अपने हाथ में तौहीद के परचम को थामा, इस्लाम के परचम को थामा और जब समाज के अंदर निकले तो इन लोगों ने शिर्क का खात्मा करके अपने घर को लौटा। और जब इन लोगों ने इस्लाम के परचम को अपने हाथों में थामा तो ये वही नौजवान थे, ये वही सहाबाए किराम थे जिन लोगों ने बुराइयों को खत्म करके दम लिया। मेरे अजीज साथियों, आज ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है, आज ऐसे ही दौर की जरूरत है, ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है, ऐसे ही अल्लाह वाले इंसानों की जरूरत है जो इंसान अपने समाज की फिक्र करे, जो नौजवान अपने सोसाइटी की फिक्र करे, जो नौजवान अपने समाज की फिक्र करे और समाज को सुधारने की कोशिश करे। मेरे अजीज साथियों, अगर नौजवानों के ऊपर गौर फिक्र किया जाए तो यही एक आयत करीमा काफी है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ के बारे में इशारा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों से कह रहा है कि लोगों, मैं बड़ी ही सही से और सच्चाई के साथ, बड़े ही इंसाफ के साथ मैं उन नौजवानों की बातें को पेश कर रहा हूँ, उन नौजवानों के किस्से को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम बड़ी इंसाफ के साथ उन लोगों की बातें को पेश कर रहा हूँ, उन लोगों के बातें को आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। उन नौजवानों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाया था। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो चंद नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी, जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान को लाया और अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद को समझा, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान को ले आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब इन लोगों ने ईमान को लाया तो हमने इसके ईमान में और ज्यादती कर दी, हमने इनकी हिदायत को और बढ़ा दिया और हमने इनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है। तफसीर कुर्तुबी बयान करते हैं कि ये लोग, ये नौजवान जो है अपने घर से मेले के लिए निकलते हैं, अपने घर से मेले के लिए निकलते हैं। वहाँ के बादशाह, उस दौर के बादशाह जो हुआ करते थे वो ईसाई बादशाह हुआ करते थे। वो बादशाह दकियानोस जिनका नाम हुआ करता था, वो लोगों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने का हुक्म दिया करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ा करते थे और लोगों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर किया करते थे। तफसीर के अंदर आता है कि ये लोग मेले के अंदर चले जाते हैं और बादशाह जब लोगों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए कहते हैं, जब ये लोग देखते हैं इन लोगों के दिल के ऊपर घेरा गुजरता है, इन लोगों को तकलीफ महसूस होती है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो लहू है, ये सारी की सारी चीजें तो बेकार है। अगर इस दुनिया के अंदर इबादत होनी चाहिए तो एक अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए। ये लोग उस मेले से निकल जाते हैं और एक दरख्त के सामने जाकर के बैठ जाते हैं। एक नौजवान आता है, उस दरख्त के सामने बैठ जाता है, दूसरा नौजवान आता है, उसी दरख्त के सामने बैठ जाता है, तीसरा नौजवान आता है, चौथा नौजवान आता है। ऐसे ही करते करते कुछ नौजवान आकर के उसी पेड़ के सामने, उसी दरख्त के सामने बैठ जाते हैं। वो लोग अपने दिल में सोचते हैं कि कहीं हम अपने दिल की बातों को जाहिर करेंगे तो कहीं आपस में मामला बिगड़ न जाए, इसलिए उन लोगों ने अपनी जबान को खामोश रखा, अपनी जबान को जुम्बिश न दिया। लेकिन कुछ देर के बाद उनमें से एक दाना किस्म के जो नौजवान थे, उन नौजवान ने अपने दिल की बातों को वाज़ेह कर दिया, अपने दिल की बातों
को वाज़ेह कर दिया कि इस दुनिया के अंदर अगर इबादत होनी चाहिए तो एक अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए। वो सारे के सारे नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं और एक जगह आ जाते हैं और अपने दरमियान में सबसे पहले इत्तेहाद को पैदा करते हैं। वो नौजवान अपने दरमियान में सबसे पहले भाईचारा को कायम करते हैं और भाईचारा को कायम करने के बाद उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गवाही देना शुरू कर दिया। ये बातें जब बादशाह के कानों तक पहुंचती है, ये बातें जब बादशाह के कानों तक पहुंचती है, बादशाह इन नौजवानों को तलब कर लेता है, अपने महल के अंदर इन नौजवानों को तलब करता है। जब इन नौजवानों को लेकर के बादशाह के हवेली के अंदर पहुंच जाता है, बादशाह के महल के अंदर पहुंच जाता है, बादशाह इन लोगों से कहता है कि ऐ नौजवानों, तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से फिर जाओ, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से बाज आ जाओ, तुम गैरुल्लाह के सामने सजदा करो, अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी का नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इज़न शतता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नौजवानों की बातों को इस आयत करीमा के अंदर जिक्र कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को मैसेज दे रहा है कि ऐ नौजवानों, एक वो नौजवान थे जो नौजवान अपने बादशाह के सामने भी खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा से नौजवानों को मैसेज दे रहा है। एक वो नौजवान थे जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान जब ले आते थे और जब अपने आप को मुसलमानों के जुमरे में शुमार करवाने लगते थे तो बादशाह से भी नहीं डरा करते थे और बादशाह के सामने बेबांगी तोहलिया ऐलान किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की तरफ इस आयत करीमा के अंदर नक्शा खींच रहा है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इज़न शतता। जब बादशाह ने इन नौजवानों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, इन नौजवानों ने बड़ी ज़बान होकर के अपने ज़बान से इस जुमले को अदा किया, इज़ कामू फकालू रब्बुना, ऐ बादशाह हमारा रब तो अल्लाह तबारक व तआला है, हमारा रब तो वो है जिसने इस दुनिया को भी पैदा किया है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिसने तुम्हें और मुझे भी पैदा किया है। हम कैसे किसी ऐसे गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदा कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते, हम किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते। मेरे अजीज साथियों, नौजवानों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस आयत करीमा को पढ़ने और समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इन कुरानी नौजवान को मशाले राह बनाया है और हमें ये मैसेज दिया है कि नौजवानों, ये नौजवान की जिंदगी, ये कुरानी नौजवान की जिंदगी तुम्हारे लिए मशाले राह है। अगर वक्त का बादशाह अगर शिर्क के ऊपर उभारता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि बादशाह के सामने भी बेबांगे तोहलिया ऐलान किया जाए और समाज और मुआशरे को शिर्क की गिलाजत से रोका जाए। लेकिन मेरे अजीज साथियों, नौजवानों की हालत, हमारे नौजवानों की हालत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है, इसका उल्टा है। ये नौजवान तो अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रहे हैं, लेकिन हमारे दौर के जो नौजवान है, हमारे समाज और मुआशरे के जो नौजवान है, इन्हें बुराइयों से, इन्हें गुनाहों से और इन्हें लहव लइब से अगर फुर्सत मिले तो ये कुरान और हदीस का मुताला करे। अगर कुरान और हदीस का मुताला करे तो कैसे करे? इनकी जिंदगी तो बुराइयों के अंदर कट रही है, इनकी जिंदगी बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब नोशी में कट रही है, इनकी जिंदगी ज़िनाकारी में कट रही है, इनकी जिंदगी जुएबाजी में कट रही है, इनकी जिंदगी फहश और उरियानियत की चीजों में कट रही है। अगर ये कुरान और हदीस का मुताला करे तो कहां से करे? अगर समाज और मुआशरे का बागडोर संभाले तो कहां से संभाले? ये तो अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकते। आज तो नौजवानों की हालत हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, जब हम कुरानी नौजवानों का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं और मुताला करते हैं
तो जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी पैदा हो जाती है और एक इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे लोगों ने उस दौर के अंदर कैसे इतनी बड़ी काम और इतने बड़े काम को अंजाम दे सका। मेरे अजीज साथियों, सहाबाए किराम की जिंदगियां भी हमारे लिए मशाले राह है, सहाबाए किराम के दौर भी और उनके वाक़यात भी हमारे लिए मशाले राह है। मेरे अजीज साथियों, कुरानी नौजवान का जब हम मुताला करते हैं, यहाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद नौजवानों का असहाबे कहफ का तज़किरा किया। जब हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करते हैं, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी के मरहले पर होते हैं, तो अपनी कौम के सामने जब उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जेल के अंदर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम या साहिबई सिजन अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान से कैदियों के सामने बेबांगे तोहर ये ऐलान करते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर इबादत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करते हैं, जब जवानी का दौर जब आता है और जवानी के दौर का जब हम मुताला करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जवानी के मरहले में उन माबूदाने बातिला को अपनी हाथों से तोड़ा था और अपनी कौम के सामने अपने कौम वाले लोगों को ये मैसेज दिया था, बुतों को तोड़ करके, बुतों को निस्तनाबूद करके ये मैसेज दिया था कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर इस दुनिया के अंदर इबादत अगर किसी की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होगी। मेरे अजीज साथियों, आयत करीमा क्या है? क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा यूं खींचा है कि उन कौम के लोगों ने कहा कि बुतों को तोड़ने वाला एक ही शख्स हो सकता है और वो नौजवान है जो इन बुतों के बारे में बुरा भला कहा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवानी के मरहले में थे, उसी वक्त बुतों को तोड़ा था और माबूदाने बातिला को निस्तनाबूद किया था। मेरे अजीज साथियों, ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर भी है। आज हम बुतों को न तोड़े, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि समाज के अंदर अगर बुराइयां है, समाज के अंदर अगर गलतियां हैं, समाज के अंदर अगर खामियां हैं, तो उन खामियों को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। इल्म को हासिल करें, उलमा की सोहबत में रह करके इल्म को हासिल करें और उस इल्म से अपने आप को भी फायदा पहुंचाए, समाज और मुआशरे को भी फायदा पहुंचाए, समाज को एक लड़ी में जोड़ करके रखने की कोशिश करें, समाज को एक जगह जोड़ करके रखने की कोशिश करें। आज समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर है तो यही है कि समाज के अंदर तफरकाबाजी है, समाज के अंदर भाईचारा नहीं है, समाज के अंदर इत्तेहाद नहीं है। नौजवानों, समझने की कोशिश करो, नौजवानों समाज को जोड़ने की कोशिश करो। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबाए किराम हुआ करते थे, वो सहाबाए किराम की जमाअत हुआ करती थी जिन लोगों ने जब दीन इस्लाम को समझा और दीन इस्लाम को जब कबूल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ईमान को लेकर के आया, तो सहाबाए किराम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और सहाबाए किराम ने जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ इस दुनिया से और अपने समाज से बुराइयों को खत्म करने की भी कोशिश की। मेरे अजीज साथियों, ऐसे कई वाक़यात कुरान मजीद के अंदर मौजूद, अहादीस के अंदर मौजूद है, जिन हदीसों से हमें पता चलता है कि सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम से कदम मिला करके, शाना बशाना चल करके अपने समाज से और मुआशरे से जो है शिर्क की गिलाज़त को खत्म किया, बुराइयों को खत्म किया और गुनाहों का किला कमा किया और गुनाहों को खत्म किया। मेरे अजीज साथियों, एक सहाबी रसूल के बारे में मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर दूं, जिनका नाम मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये वो नौजवान है, ऐ नौजवानों, अपने जिगर को थाम करके इस वाक़ये को सुनो और अपनी जिंदगी के अंदर इसकी जिंदगी को नाफिज करने की कोशिश करो। ये वो नौजवान है, ये वो सहाबी रसूल है जिसने अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर ऐशो इशरत के अंदर गुजारी, जिसकी जिंदगी के बारे में अहदीस के अंदर आता है, जिनकी जिंदगी के बारे में तारीख निगार लिखते हैं कि एक मर्तबा अगर अपने जिस्म के अंदर खुशबू को लगा लेते थे और इतना महंगा खुशबू और इतर हुआ करता था कि एक मर्तबा अपने जिस्म के अंदर लगाते थे, दोबारा उसे अपने जिस्म के अंदर इस्तेमाल नहीं करते थे और
تاریخ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، حدیث کے اندر یہاں تک ثبوت ملتی ہے کہ ایک ایک کپڑا ان کا جو ہے عرب سے ملک جو مکہ کے سرزمین سے باہر سے بن کر کے، یعنی ملک شام ملک یمن سے ان کا جو ہے جوڑا بن کر کے آتا تھا۔ اتنے امیر تھے، اتنے جو ہے امیر باپ کے بیٹے تھے، امیر باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جوڑا جو پہنتے تھے وہ ان کے گھر سے، ان کے ملک کے باہر سے بن کر کے آتا تھا، اور اپنے جسم کے اندر جو خوشبو لگاتے تھے، ایک مرتبہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو وہ گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی، وہ گلیاں مہک اٹھتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو لے کر کے آتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتی تھی، وہ ماں بھی دشمن ہو جاتی ہے، وہ ماں اپنے رشتے اور ناطے کو توڑ لیتی ہے، اور وہ ماں اپنے گھر سے جو ہے دستبردار کر دیتی ہے، وہ ماں جو ہے اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ہی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت اور ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اتنے غریب ہو چکے تھے کہ جس جسم کے اندر جو ہے ستر چھپانے کے لیے چند جو ہے ٹکڑے کپڑے میسر تھے۔ صحابہ کرام ان کے اوپر ترس کھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ مجھے مصعب بن عمیر کے اوپر ترس آتی ہے، مجھے مصعب بن عمیر کے اوپر دکھ ہوتا ہے، ترس آتی ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس کی زندگی عیش و عشرت میں کٹی ہے، جس کی زندگی دنیا کے اندر ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی کٹی ہے، لیکن جب اسلام کے دائرے کے اندر آیا، جب اسلام کو قبول کر لیا تو اتنی پریشانیوں کو برداشت کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پہلا نوجوان ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، سرزمین مدینہ کی طرف جو ہے اسلام کی دعوت کے لیے بھیجتے ہیں، اور سرزمین مدینہ کے اندر جانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی کو سرزمین مدینہ کے اندر کھپاتے ہیں، اور سرزمین مدینہ کے اندر اپنی جوانی کو لگانے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس گھرانے کے اندر ایمان والا موجود نہ ہو، جس گھرانے کے اندر اسلام کے فالو کرنے والے موجود نہ ہو۔ یہ ہے جوانی، جس جوانی کو اللہ کے لیے قربان کیا، دولتوں کو ٹھکرایا، دولتوں کو اپنی جوتی کے نوک کے اوپر رکھا، اور دولتوں کو ٹھکرانے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھکرانے کے بعد ایک ایسی زندگی کو گوارا کیا جس زندگی کے اندر اپنی عزت کو چھپانے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے چند جو ہے کپڑے میسر تھے، اور اتنے ہی کپڑوں میں اپنی زندگی کو گزارنا منظور کیا، لیکن غیر اللہ کی پرستش کرنا منظور نہیں کیا۔ اور یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جن لوگوں نے اپنی جوانی کی قدر کی، اور اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اور اس کی دعوت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جو زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ان نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے جو نوجوان اگر اس دنیا کے اندر چند پیسے حاصل کر لیتے ہیں، جو نوجوان اس دنیا کے اندر اگر چند دولتیں، کچھ دولتیں اگر حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ نوجوان اس دنیا کے اندر تکبرانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ نوجوان برائیوں کے عمیق گڑھے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ نوجوان غلط راستوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جوانی کی قدر نہیں ہے، یہ جوانی کی قدر نہیں ہے۔ جوانی کی قدر تو یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے لوگوں اپنی جوانی کو، اے نوجوانوں اگر تم اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارو گے، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآنی نوجوان اور یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کے واقعے کو اور ان کی کہانیوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر نمونہ بنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے اسوہ بنائیں گے تب اپنے سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے سے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے سے شرک کی غلاظت کو ختم کر سکتے ہیں، شرک کو مٹا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے ساتھی مقرر جو ہے وہ اسٹیج پر آ چکے ہیں، آپ لوگوں سے معدبانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، یہ مدرسہ آپ لوگوں کا مدرسہ ہے، آپ لوگوں سے معدبانہ گزارش ہے اور یہ التماس ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں کے درمیان میں 2 سے 3 منٹ تک ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ تعاون کریں تو وہ لوگ اٹھ کر کے آئیں اور تعاون کرنے کی کوشش کریں، اپنے جو ہے پیسے سے، اپنے عطیات سے اس مدرسے کو جو ہے قوت بخشنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ مدرسہ آپ لوگوں کا مدرسہ ہے، یہ ادارہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، یہ مدرسہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے، آپ لوگوں کے عطیات اور صدقات و زکات سے چلتا ہے۔ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ یہ مدرسہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے اپنے عطیات کو اور پیسے کو تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، جتنی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، آپ لوگوں سے گزارش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے اصول کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔